مہربانی آپ بھی جانتے ہیں کہ بہت مہینوں کے بعد ہم لوگ مل رہے ہیں. اس کی وجہ بہت سی ہیں. ایک تو یہ بیماری جو اتنی زبردست پھیلی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ہمارے لوگ بھی ریاست سے باہر تھے. بہت سی وجوہات تھے مگر آج اللہ کا شکر ہے اتنی دیر کے بعد ہم لوگ بیٹھ سکے اور پھر سے ایک دفعہ اکٹھے بیٹھ کے ہم نے غور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ وی آر ڈٹرمنڈ کہ جو ہم نے ڈکلیریشن کیا تھا 4 اگست 2019 میں اس میں کوئی رد بدل نہیں ہے. وی اسٹینڈ بائی. دوسرا جو بہت اہم مسئلہ ہے اس کا وہ اس بیماری کا ہے. جس بیماری نے یہاں پہ ہر شعبے کو تباہی کے دہانے پہ پہنچایا. کوئی بھی سیکٹر آپ لے لیجیے, کوئی سیکٹر نہیں ہے جو اس وقت بربادی میں شامل نہیں ہے. وہ ٹورسٹ انڈسٹری ہو, وہ چھوٹا سا چھوٹا شاپ کیپر ہو, وہ چھوٹا سا چھوٹا ریڈی چلانے والا ہو, ٹرانسپورٹ ہو, کوئی بھی جو ہے ایک بربادی کے عالم. اس کے اوپر جو پھر اللہ کی طرف سے بہت زبردست بارشیں پڑی اور ژالہ باری ہوئی, کسان کو نقصان ہوا. کسان بالکل جو آباد تھا آج کافی وہ کسان جو ہے گر گیا. گورنمنٹ نے کسانوں کی طرف 1000 روپیہ دیا ہے. اس سے کیا ان کو ایک جامع پالیسی بنانی چاہیے جس میں وہ ہماری ٹورزم انڈسٹری سے ہو, وہ ہمارے دوسرے طبقوں سے تعلق ہینڈی کرافٹ جو بھی ہے ان کی طرف ان کو آج زبردست سوچنا چاہیے کہ کہیں وہی حال نہ ہو جائے جیسے اس ماسٹر کے بچے نے, کیونکہ والد کے پاس فیس کا پیسہ نہیں تھا, اس نے اپنی جان گنوائی نور آباد. انہیں اس طرف زبردست توجہ دینی چاہیے. اور ہم سمجھتے ہیں اس میں اگر کئی چیزیں ان کو بند بھی کرنی پڑے, پہلے انسان کو بچانا ضروری ہے. دوسری بات یہ بھی ہے کہ کووڈ کے لیے جو ویکسین ہے اس کو بھی زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, کیونکہ بہت علاقے ہیں جہاں ہماری ڈسپینسریز ہیں, وہاں ڈسپینسری نام سے تو ہے مگر کوئی اسٹاف نہیں. آج بھی مجھے جب موقع ملا اس ہسپتال جو یہاں انہوں نے DRDO نے کھولا ہے, میں نے وہاں بھی لیفٹیننٹ گورنر صاحب سے کہا اور وہاں ہیلتھ سیکرٹری بھی تھے, چیف سیکرٹری بھی تھے, مہربانی کر کے ان دور دراز علاقوں کی طرف بھی توجہ دیں کہ وہاں پہ ڈاکٹر ہے, نرس ہے, پیرامیڈیکل سٹاف ہے, ان کے پاس دوائیاں ہیں یا نہیں ہیں. اگر ان کو ہم بھول جائیں گے تو وہی حال ہوگا جو ہو رہا ہے ہر جگہ. اس کی طرف توجہ دینا بہت ضروری ہے. آپ نے اگر کچھ پوچھنا ہے تو پوچھیں. ہاں, اور ہمارے اسپوکس پرسن جو ہیں وہ طارقامی صاحب ہوں گے اور انہی کی طرف سے اب ہمارے پریس نوٹ وغیرہ آئے. ڈاکٹر صاحب, بہت ساری ریمورس ایسی ہے کہ یہاں پر ابھی جموں کشمیر کو ڈیوائیڈ کیا جائے گا, جس میں بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر جو ساؤتھ کشمیر ہے اس کو جموں کے ساتھ جوڑا جائے گا. تو آپ نے اس کے بارے میں یہ میٹنگ طلب کی تھی یا کووڈ کے لیے یہ میٹنگ تھی؟ دیکھیے, یہ تو پہلے ہم لوگوں کو ملنے کی ضرورت ہے, بہت وقت ہو گیا. رومر تو یہاں ہر وقت چلتے, ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے, صرف رومر جیسے آپ سنتے ہیں ہم بھی سنتے ہیں, مگر ہمیں اس کے زیادہ کچھ پتہ نہیں. جو وہ کرنا ہوا کریں گے. ہم تو اللہ کے رسی کو تھامے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ وہ ہمارے فیوچر کو ٹھیک رکھے.
फारूक साहब, लगातार डिलिमिटेशन के सवालों पर महबूबा जी भी शांति बनाए रखे हैं, आप भी शांति बनाए रखे हैं। डिलिमिटेशन प्रोसेस के बारे में अभी क्या आपका स्टैंड है? क्या डिलिमिटेशन का आपके जवाब कंटिन्यूसली सवालों पर नहीं आते? देखिए, जहाँ तक डिलिमिटेशन का सवाल है, हम लोग कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, और हमने उनसे कहा है आप वो सुप्रीम कोर्ट का पढ़ लीजिए, उसका जवाब आ जाए हमें। डिलिमिटेशन के जो चेयरमैन हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, उनसे जवाब आए तो उसके बारे में फिर हम फैसला करेंगे। तो सही है। 335A के हवाले से पॉलिटिकल प्रोसेस आपका क्या है? अगर सुप्रीम कोर्ट में केस दर्ज हुआ है, लेकिन पॉलिटिकली आप लोग क्या कर रहे हो इस चीज को रेस्टोर? देखिए, पहले आपको मैं बताऊं, खुद आप जानते हैं कि आज सूरत क्या है बीमारी, लोगों से एहतियात से मिलना पड़ता है, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है कि अल्लाह नजात दे, मुझे खुद हुई है और मैं जानता हूँ मेरे पे कितना इसका अभी भी मैं वो असर है जिसको अभी भी वो गया नहीं, और कितने ही लाखों इस दुनिया फानी से चले गए इस बीमारी से। और हम इस बीमारी को ऐड नहीं कर सकते, बल्कि आज हमने पूरा मिलके उन सबको जो इस बीमारी से गुजर गए हैं उन्हें हमने जो है मगफिरत की दुआ मांगी। और एक बात जो मैं भूल गया आपसे कहना, यहाँ पे पुलिस का बड़ा जबरदस्त दबाव और है, और लोगों को पकड़ धक्कड़ ये वो कर रहे हैं, बच्चों को पकड़ के ले जा रहे हैं। मैं समझता हूँ ये नहीं होना चाहिए। मेरे ही रास्ते पे आप देखें, वहाँ पे नीचे कंडा है नर्सिंग होम के पास, वह खोल देते हैं, बंद कर देते हैं। जब उनसे पूछते हैं कि क्यों बंद किया है, दुनिया की गाड़ी चलती थी, आज इसे बंद क्यों कर रहे हैं, इनके पास कोई जवाब नहीं है। तो ये तो गलत है। अगर ये डेमोक्रेटिक राइट है इंसान का चलने का सड़क, उसको बंद क्यों कर रहे हैं? उन गाड़ियों को लाइन में क्यों खड़ा कर रहे हैं? मैंने ये देखा नहीं, और इसलिए मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ज़रूर अपील करूंगा आपकी मेहरबानी से इस तरह भी तवज्जो दें कि ये पकड़ धक्कड़ है इसको बंद करें। यहाँ फिर लोग इतने खिलाफ हो जाएंगे कि इनको फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। और आई हैव अ क्वेश्चन, क्योंकि आई हैव टू क्वेश्चन। पहला ये है कि आपसे मिलने का मौका दिया। पहला ये सवाल कि you have lost this battle against BJP when it comes to the decision of the parliament or majority जो है। पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि लोग ये भी आपसे सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या फारूक अब्दुल्ला साहब या आपके हसनैन साहब इस वक्त हैं, अकबर लोन साहब हैं, आप इस वक्त जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट करते हैं व्हेन इट कम्स टू द पार्लियामेंट। अगर कोई ऐसा फैसला लिया गया बाइफर्केशन या स्टेट को डिवाइड करने के हवाले से जो पहले ही हो चुका है, आपने तब भी इस्तीफा नहीं दिया था। क्यों देता हूँ इस्तीफा? आप सुनिए, आपने मुझे वोट दिया है कि मैं इस्तीफा दूं? आप सवाल सुनिए सर, सवाल है, डोंट बी एंग्री सर, डोंट बी एंग्री। आप सवाल सुनिए। सवाल ये है कि क्या इस बार अगर कोई ऐसा फैसला लिया गया, चाहे गुस्से से, चाहे लोगों के जज्बात को रिप्रेजेंट करने के हवाले से, क्या उस पार्लियामेंट को आप खुलीदा कहेंगे इस बार? क्या करेंगे? पार्लियामेंट मैं नहीं कहूँगा। आग में रहकर हमने लड़ना है। मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, आप उस वक्त पैदा भी नहीं हो रहे। मेरे वालिद को जब सऊदी अरेबिया में थे और उनको ये पता लग गया था कि दिल्ली जब वो वापस आएंगे उनको गिरफ्तार किया जाएगा, तो उस वक्त के जो बादशाह जो थे शाह फैसल, उन्हें शेख साहब को ऑफर किया कि आप यहाँ रहिए, हम आपको सिटीजनशिप देंगे। उन्होंने कहा मुझे नहीं चाहिए, मैं आग में रहकर मैं उस आग को बुझाना चाहता हूँ। हम भी पार्लियामेंट में रहकर अपने हक के लिए लड़ते रहेंगे जब तक हम जिंदा हैं। आप या पार्लियामेंट के मेंबर की तरफ इशारा दे रहे हैं कोई बड़ी अपोजिशन बनाने के हवाले से पूरे मुल्क में? मुल्क में तो पहले ही अपोजिशन बड़ी है, हर एक पार्टी बड़ी है, आप देखते हैं सब इकट्ठे हैं, कई मसलों पे इकट्ठे हैं और इंशाल्लाह आगे भी इकट्ठे रहेंगे।
कोई ऐसी बात तो है नहीं कि नहीं इकट्ठे रहेंगे। मैं सिर्फ इस बारे में एक चीज़ कहना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ कि हम सब भी यहाँ से इस बदनसीब सरजमीन से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। जो भी मुसीबत आज तक आन पड़ी है हम पर, एक साथ मिलकर हमारे आवाम ने उसको झेला है, सामना किया है। ये जहाँ तक सवाल है पार्लियामेंट में जाने का ना जाने का, मेरे ख्याल में ये बहस सब कहीं पर रुकनी चाहिए। जहाँ तक हमारे PAGD का ताल्लुक है, वी विल यूज़ एवरी अपॉर्चुनिटी, कमज़ोर से कमज़ोर तरीन अपॉर्चुनिटी भी हमें मिले, हम उसको खोना नहीं चाहेंगे, मज़ाहिमत कर लेंगे अपने आवाम की खातिर। और एक बात मैं अश्योर करना चाहता हूँ PAGD के रहनुमाओं की तरफ से, नेवर एवर misunderstand us, and we must convey it to the people of every region, whether it is Jammu, Kashmir, even Ladakh, that we shall be on the side of our dear people who are suffering, who are settled. There is no hope, but certainly we will be on their side. Thank you very much. Thank you. I think this is enough. Thank you. बात एक ऑप्शन है, क्या आप लोग कोई ऐसी डेलीगेशन फॉर्मुलेट कर रहे हैं जो केंद्र सरकार से बात करे ताकि जम्मू कश्मीर देखिए, मैं आपसे एक बात कहूंगा, कोई दरवाजा हमने बंद नहीं किया, ये बात याद रखिएगा। जब वो हमें बुलाएंगे उस वक्त देखा जाएगा, हम लोग देखेंगे उस वक्त। we will discuss. We will see to this thing, but we have Thank not you very closed any much. options. Yes, We're not closing any doors. yes, very good. What we want is betterment of our people. As he told you. Now the line is over. Please, thank you very much. Thank you. Wish you the best. तारकामी साहब, आप अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं, क्या हम ये समझे कि फूल्स वेट एंड वॉइस एक्ट, तारकामी साहब आप अपॉर्चुनिटी की बातें कर रहे हैं, क्या हम समझे कि फूल्स वेट एंड वॉइस एक्ट? Yes. INS. Extremely fearless journalism.